good afternoon to all of you, and it is indeed a pleasure to be here and talking once again on anemia in pregnancy. So it's been n number of times that I have been here and I have been talking about anemia. I thought everyone has got bored of hearing me, but then but then I don't lose this opportunity of rekindling that drive and that enthusiasm of fighting anemia, because ये ऐसे जाने वाला नहीं है. So we really have to kind of keep reminding us over and over again. और जो इसको भगा सकता है वो हम ही भगा सकते हैं. So basically I think these are two things. So I am glad that we are discussing it again. And हमें रिचुअल की तरह जैसे वो पूजा करते हैं वैसे ये we should continue doing it. है ना, बार बार करेंगे तो हो जाएगा, right? So I'll share my 2 years journey. So it's been almost 2 years now since I have been kind of trying to kindle some kind of interest as far as this is concerned, and we've made some we made some gains out of it. I don't say it is gone, but lots of things are happening. और फिर I think जो initial work है उसमें ज़्यादा time लगता है और बाद के जो steps हैं वो automatically थोड़ा जल्दी होंगे. That is what I feel. So I'll share some slides which could be common, but then I think we'll have more of discussion than about the slides part. So this we all know. अब इसमें तो कोई doubt ही नहीं है कि anemia जो है it is not only a maternal problem, it is what kind of babies are going to be there subsequently, as what would be the health of the babies who are born to mothers who are anemic. I think that is what is more important, and we all know what is happening. अभी तो health has taken a very bad bashing. I'm to say कोई भी ऐसे पूरी तरह से healthy तो कोई भी नहीं दिखता, या तो diabetes है या hypertension है या anemia है, stress तो है ही है सबको. So I think अब समझ नहीं आता कि कैसे हो कि सब लोग दोबारा से एक बार शांति और अच्छे से we go back to the times when we were there. So attempt करते रहना चाहिए. So I think this is a part of it. So it is important we address anemia because we want healthy nation. और ये चीज़ जो है अभी सारी चीज़ों के बाद एक और नई चीज़ समझ आई, which WHO has also come is, which is known as self-care. So the concept of self-care should be inculcated in the mother. हम what we do is हम उनको advice देते हैं, हम उनको responsibility नहीं देते हैं. So there is a difference between giving an advice and making her responsible for the health of the baby which is going to be born to her. So I think वो थोड़ा tweak करना चाहिए, और मैंने public sector में देखा it works. वो जो patient को आप बता देते हो ना कि मतलब अब क्यों आपका anemia नहीं होना चाहिए और आपका hemoglobin क्यों बराबर होना चाहिए, then और I just explained, it doesn't take me more than 3-4 minutes. I just explained her that कि and I have left that concept of 11. आप ferritin की बात कर रहे थे, so मेरे को लगा जब बात ही 12 की करेंगे ferritin तो automatically उसमें cover हो गया. If a woman comes to you in the first trimester and she is 11 gram %, she is already deficient. वो कहाँ उसका 11 gram % is not okay, no? क्योंकि उसको 12 होना चाहिए था नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में. अभी थोड़ी कि अभी यूपीटी पॉजिटिव आया, नाउ शी हैज़ दैट राइट ऑफ बीइंग 11. नो, दैट मीन्स शी इज एनेमिक, हर स्टोर्स आर ऑलरेडी डेफिशिएंट, सो शी नीड्स टू बी ट्रीटेड एज एनीमिया. सो सबको जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको मैं बोलती हूँ आपका 12 होना चाहिए. सो टारगेट ही 12 सेट कर दिया. सो अब वो 12 पे रखना है. सो दैट आई टेल देम कि वो कैसे होगा, और यू टेक टैबलेट्स, उससे बिल्कुल हो जाएगा. और टैबलेट्स कैसे लेनी है वी एक्सप्लेन देम, और फिर आप अपना एक हीमोग्लोबिन 4 हफ्ते के बाद दोबारा कराएंगे. सो वो भी उसी को बता देते हैं. सो अब क्या होता है कि पहले तो वो पेशेंट आता था, डॉक्टर को याद है नहीं याद है, वो तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया. अब वो पेशेंट करा के ही आता है. कई बार तो बीच में 2 हफ्ते में भी आके करा लेता है एक बार देखने के लिए कि कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है. सो दिस कॉन्सेप्ट एंड दिस इंटरेस्ट हैज़ टू बी, एंड दिस इज व्हाट इज सेल्फ केयर. WHO का पूरा बड़ा मैनुअल आया है ऑन सेल्फ केयर of our patients. We need to give them responsibility. So I think that is what is important, and you tell them जैसे आप बताते हैं कि for the baby to be bright, intelligent and outstanding. हाँ, अगर वो वैसा बनना है आपको तो बच्चे का आपका 12 होगा तभी बच्चे का 12 होगा. I think that concept and that little 2-3 minutes are the most precious if you really ask me.
So all this is done and we have been talking about this, we know the programs and अभी after all these deliberations जो थोड़ा हलचल हुई है, anemia मुक्त version 2 भी आ रहा है. So people are working now, we've already had 2 meetings on that, जिसमें parenteral is coming in a big way. जिसको मतलब वो कार्बोक्सी माल्टोज का थोड़ा वो जो कन्फ्यूजन है वो भी सारा सेटल हो जाएगा. सो दैट इज़ कमिंग इन अ बिग वे एंड ऑल्सो इसमें वी आर पुशिंग, पर अभी हमारी कोई ज़्यादा सुन नहीं रहे हैं. हम विटामिन B12 के बारे में वी ट्राई टू पुश, पर वो उसका अभी एविडेंस नहीं है. एविडेंस एक्चुअली उन्होंने एनालाइज ठीक से नहीं किया है. वो एविडेंस को नॉन प्रेग्नेंट और प्रेग्नेंट को कंपेयर करते हैं. मतलब वो क्योंकि कहते हैं नॉन प्रेग्नेंट में विटामिन जो एनेमिक हैं और जो नॉन एनेमिक है उसमें B12 की डेफिशिएंसी दोनों में है. So that is why it is not required. So but I told them कि जो प्रेग्नेंट है वो प्रेगनेंसी में जो डिमांड है वो तो एज द प्रेगनेंसी एडवांसेस बढ़ती है ना, बिकॉज देयर इज अ बेबी इनसाइड फीटस की डिमांड शुरू वाले पीरियड में नहीं होती है. सो इफ़ यू रियली वांट टू नो वेदर इट इज़ डेफिशिएंट और नॉट, यू नीड टू फोकस ऑन प्रोग्रेशन ऑफ द प्रेगनेंसी एंड वी हैव स्टडीज़ ऑन दैट. सो उन्होंने फिर अल्टीमेटली जो DG हैं ICMR के, उन्होंने बोला परना और मेरे को कि ये सबसे ज़्यादा शोर मचा रहे हैं, इनको एक स्टडी दो, ये करवाएंगे अपने आप स्टडी. सो वी सेड वी आर मोर देन हैप्पी, वी विल डू इट, बिकॉज वी वर इंसिस्टिंग कि आपको B12 सप्लीमेंट करना चाहिए एंड इट इज़ वेरी डेफिशिएंट, ऐसा नहीं है. So that is where we are. So we had our last meetings on 2nd and 9th of April अभी. So prevalence अभी कहीं नहीं गया, it is just the same. Let's all understand कि 1970 से लेके अभी तक 50 साल हो गए हैं, हम वहीं हैं, right? And people are just not understanding. वो पता नहीं अभी तो कुछ ऐसी भी बातें करने लगे कि इंडिया में हीमोग्लोबिन का लेवल ही कम कर दो. फिर वो कहते हैं कि शायद ना यहाँ के ऐसी we vociferously was against it. हाँ बिल्कुल है ना. उसके बाद फिर जो है, so we have been focusing on IFA, और हमें पता है कि IFA अकेले से कुछ बात बन नहीं रही है. अभी सारा टाइम सेम स्टोरी चलती है कि देखिए हम कितने बड़े हो गए हैं अभी तो, है ना, मैं तो रिटायर होने वाली हो गई. तो अब उसमें कहानी जब से बचपन से यही चल रही थी, आयरन की गोली पेशेंट लेता नहीं है ना, वो टॉलरेट नहीं करता है, कंप्लायंस नहीं है. आई थिंक वी हैव नॉट चेंज्ड एनीवेयर, इट इज स्टिल द सेम. कहानी वही चलती रहती है और एनीमिया अपनी जगह है. सो है ना, तो मतलब, और जब हम थे वी हैड जेक्टोफर, वी हैड डेक्स्ट्रान, साइड इफेक्ट्स थे. नाउ वी हैव बेटर ड्रग्स अवेलेबल, सो क्यों नहीं. सो आई थिंक दैट इज वेयर वी नीड टू ओपन अप आवर माइंड्स एंड दैट इज वेयर द आंसर टू दिस प्रॉब्लम राइज. So India, same. So this is something which I found interesting by Albert Einstein. Everything that exists in your life does so because of two things. Something which you did and something which you did not do. So I think anemia में हमने कोई चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं की हैं, इसीलिए ये यहीं है. So that is what I've feel. हाँ नहीं वो है ही नहीं है. मतलब एक्चुअली हम इसको प्रॉब्लम समझते ही नहीं हैं, पर आई थिंक प्रॉब्लम तो अपने आप में ऑब्वियस हो गया है. You see the health of the people around, diabetes, hypertension, obesity, ये pollution तो है, पर anemia की भी देन है इसमें. You can't say कि वो नहीं, epigenetics ही गड़बड़ हो गया है ना. जो बच्चे अंदर हैं उन्हीं का epigenetics तो वही तो बड़े होंगे और फिर उसके आगे वही तो आगे बढ़ेगा. So we have not done our bit. हमने उसको शायद ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया, हम और चीज़ों में उलझे रहे. So I think that is it. So वही है कि if you want different results, do not do the same things over and over again. अब हमें कहीं तो चेंज करना पड़ेगा एंड दैट इज़ वेयर वी आर, राइट. सो इफ़ वी थिंक बियॉन्ड, तो अब विटामिन B12 को हम नहीं निकाल सकते. आपने कहा कि 6500 आ जाता है. दिस इज़ अ रिसर्च क्वेश्चन एज ऑफ कि हमने किसी को B12 शुरू किया, उसको कब तक दें, है ना, ये अभी इसकी स्टडीज़ नहीं है. But what we need to understand is that if you give 1000 microgram injection of vitamin B12, it stays in your body it is stored in the body for 400 days in the liver. So जहाँ पे हमें ज़्यादा डाउट लगता है तो हम 1000 तो दें ना इंजेक्टेबल which stays in the body. अगर हम ओरल देते हैं 1000 माइक्रोग्राम OD और 1500 वो नहीं मैम, एक्शन तो देता है, आपकी बात सही है. वो मतलब वो एक्शन तो आता है. व्हाट वी हैव सीन इज देयर आर पेशेंट्स हु टेक इट. एक तो कॉस्टली पड़ता है और पेशेंट को इतने सारे ड्रग्स लेने होते हैं, वैसे ही पेशेंट गोलियों से परेशान होता है.
और फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन है या नहीं है, वी आर नॉट टू श्योर. और आई थिंक ऑल दोज थिंग्स डू प्ले अ पार्ट. सो इफ पॉसिबल देन आई थिंक 1000 माइक्रोग्राम तो जरूरी दे देना चाहिए. एंड ऑफ कोर्स टेकिंग केयर हाइपर पिगमेंटेड नकल्स. हमारा पेपर बस पब्लिश हो जाएगा. सो आई थिंक वी आर स्केलिंग इट अप ऑल्सो. मेरे को नहीं मैम, वो जो छोटी लड़की है उसका काम है ये. सजेशन मेरा था पर किया तो उसने था. सो जब we think beyond it, the first thing is B12 deficiency, the second thing is parental route of iron administration. Parental route of iron administration, which is very important. Then behavioral change, I said, both in the healthcare providers and in the beneficiaries. Beneficiaries को तो मैंने आपको बताया that how do we just have to counsel them. और बहुत रेयर होते हैं जो बिल्कुल रेजिस्टेंट होते हैं. मतलब इफ़ आई हैव टू गिव यू अ नंबर, मे बी कोई 300-400 में कोई एक होगा जो रेजिस्टेंट होगा. रेस्ट ऑल आर वेरी विजिलेंट. पर उनको पता ही नहीं होता, मतलब स्पेशली पब्लिक हॉस्पिटल में, कि पेशेंट को दवा क्या दी, कोई दवा पूरी दी भी या नहीं दी. सो वंस इन अ वाइल आई वुड डेफिनेटली कॉल देम एंड टेल देम टू शो मी देयर स्लिप्स. एंड ऑलवेज आस्क देम, जब वो अगली विजिट में आते हैं 4 हफ्ते के बाद, कितनी दवा बची है. जस्ट अ स्मॉल क्वेश्चन. तो जो कहते हैं बस 1-2 डोज बची है मीन्स खा रहे हैं, और कुछ कहते हैं नहीं अभी थोड़ी पड़ी है, तो फिर मैंने बोला कहीं तो गड़बड़ है. फिर इसका मतलब आप नहीं खा रहे हैं, क्योंकि दवा तो हमने आपको उतनी ही दी थी. बिहेवियरल चेंजेस इन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स. अब इसके लिए व्हाट वी हैव डन, इसके लिए वी हैव स्टार्टेड वी हैड बीन डूइंग एंड कॉन्टैक्टिंग आशा वर्कर्स. पर अब हमने केवल अनीमिया की जगह नाची के अंडर हमारी एक एनजीओ है केपेड, उसके साथ हमने कंबाइन करके, तो अब हमने आशा वर्कर्स का फुल चेकअप करना शुरू किया. सो वी होल्ड अ कैंप, लॉजिस्टिक्स केपेड वाले देते हैं. तो वो क्या करते हैं, हम जाके उनका BMI लेते हैं, वी टेक देयर हीमोग्लोबिन, वी टेक देयर ब्लड प्रेशर, स्पॉट शुगर लेवल करते हैं, राइट. फिर उनका ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, एक सर्जन्स की टीम भी जाती है. और ज़्यादा चीज़ें हैं विच विल बी टेकन केयर बाय द MO देयर ओनली. फिर उनको केपेड वाले वो लाके हमारे हॉस्पिटल में, या जो भी हॉस्पिटल उनके साथ अब हम लिंक करेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में करेंगे ये प्रोग्राम. पायलटिंग पहले हो गया हमने 3 कैंप्स किए हैं पायलटिंग में, और ऑलमोस्ट 20-30% मॉर्बिडिटीज़ निकल रही हैं. सो उनको जब आप उनका अपना इलाज होगा तो वो सेंसिटाइज होंगे. सो ये भी एक तरीका हुआ जिसमें हमें लगा कि केवल मतलब उनको ये कहते रहें कि आप उसका ख्याल करो, उसका ख्याल करो, तो सेल्फ केयर. सो सेल्फ केयर को यहाँ पे भी इंडक्ट किया. सो आई थिंक दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट, राइट. फिर आयरन और कैल्शियम का इनटेक की बात थी. जो द पीपल हु आर डिस्कसिंग आर राइट दैट इफ यू गिव iron alternate day, there is a concept, they say that the absorption is better, but the accepted norm is if you are giving a therapeutic dose of iron, you give it twice a day. स्प्लिट डोज में ही देते हैं, और अगर आप प्रोफिलेक्टिक देते हैं तो वंस अ डे देते हैं. और अगर पेशेंट टॉलरेट नहीं करता है तो ये भी एक काउंसलिंग का पार्ट है जो हम मिस कर जाते हैं. सो जो हमारे पेशेंट होते हैं वो ऑल एंड नन होते हैं, या वो ले रहे होते हैं या वो नहीं ले रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने खाया, गेस्ट्राइटिस हुआ और उन्होंने छोड़ दिया, एंड देन देयर इज नो आयरन इनटेक. सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेल देम कि अगर आपने, और हम इसलिए हेजिटेट करते हैं उनको कहने में कि अगर शुरू से ही कहेंगे कि आप कभी कभी ले सकते हैं तो कभी कभी लेंगे. नहीं, दैट इज़ अ ह्यूमन नेचर. नो, जब मैं भी काउंसिल करती हूँ तो मैं बड़ा हेजिटेट करती हूँ कि अभी बताऊंगी तो शुरू से ही आधा आधा करके लेंगे. सो व्हाट आई टेल देम इज कि आपने जैसे लिया, फर्स्ट वीक में आप वापस आओ, एंड देन वी हैव अ लिटिल डिस्कशन ओनली ऑन दैट कि आपका जो है आपको कैसा लग रहा है, जलन तो नहीं हो रही है. देन यू कैन आस्क देम व्हाटएवर. सो देन वी से कि आप इसको ट्राई करो ऑल्टरनेट डे, फिर जब सेट हो जाएगा फिर वंस अ डे पे आ जाओ. सो बट थोड़ा सा दैट कॉन्वर्सेशन हैज़ टू गो, अदरवाइज नहीं. I think that works, yeah. So check compliance at each visit, I said, involving family members and especially the spouses. So I think it's time that we extend our net. हमारा स्क्रीनिंग नेट बढ़ना चाहिए. तो जहाँ पे भी आप लोग हैं, मतलब आई थिंक जब आपके पास कपल्स आते हैं या फैमिलीज आती हैं तो ट्राई एंड डू अ टेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ देम. और मे बी हेल्थ केयर वो वेट तो करते ही हैं सारे. If anything can be done, a little bit of healthcare provision for them can be added on. So that the aim is to find out how many do we need to, and n number of
people who are there, no? So उनको पता तो चले कि हम ठीक नहीं हैं, अभी तो सारे ठीक है ना. So I think that is what is important, right? So these are the main things. So gaps तो हर level पे हैं. We have to identify the gaps and we have to close them, and that is why everyone has to be together. Everyone has to be together. The gaps in public sector may be different, the gaps in private sector may be different, and that is why public and private sector working together will be more meaningful. So ये gaps थे जो हमने शुरू में identify किए और बहुत आपके साथ share भी किए. So why are we looking at these gaps once again? Because now we have a set of people who is already sensitized. जब sensitized है आप थोड़ा और भी दिमाग लगाते हैं ना कि मतलब ये gap हमारे यहाँ भी था, right? अब कुछ कर सकते हैं, So it is kind of, this talk is basically meant to, stimulate your minds to see what can you do at your level. We all have to find out our own circle of influence. कोई हमारे लिए करने वाला नहीं है, मैं क्या कर सकती हूँ अपने लिए और मेरे पेशेंट्स के लिए. आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. सो इसमें अगर आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की बात करेंगे तो नॉलेज, प्रायोरिटीज़ एंड एटीट्यूड, हमने बोला ना, हमने उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं दी. डॉक्टर शारदा यही तो बोल रहे थे कि वो हमने उसको ध्यान ही नहीं दिया, और माइल्ड को तो ध्यान ही नहीं दिया. तो जब हम बेंचमार्क की 12 रख रहे हैं एट हर लेवल कि 12 से कम हमें दिखना ही नहीं चाहिए, एंड बिलीव मी 13-14 आराम से आता है. अब तो हम किसी में चिंतित हो जाते हैं जिसका 16-17 अभी तो लगता है पॉलीसाइथीमिया है. Those also we started picking. पहले तो वो हालत ही नहीं आती थी. So it becomes important that we keep our benchmark high. 10 पे हम खुश थे तो फिर 9 भी ठीक लगने लग जाता था, उसके आसपास ही है. So no, it is not okay. I think that is what it is important. And then beneficiaries में mothers and relatives, मैंने उनको डील करने के लिए आपको engage करने के लिए 2 suggestions दिए. मदर की काउंसलिंग, सेल्फ केयर, एंड रिलेटिव्स की स्क्रीनिंग. सो जब सारी चीज़ें ये इकट्ठी होती हैं तो दिमाग के ऊपर थोड़ा असर ज़्यादा अच्छा आता है कि हम एक ही बात कर रहे हैं, उनमें भी. देन एवरीवन ट्राइज टू काइंड ऑफ, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट तो आता है ना. देन पॉलिसी, हमने वी आर वर्किंग हार्ड ऑन पॉलिसी टू गेट विटामिन B12 ऑन फ्लो. देन इरेटिक डिस्पेंसिंग, हमारे पब्लिक सेक्टर में तो ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है. इरेटिक डिस्पेंसिंग मतलब महीने का दे दिया, आधा दे दी डोज. अभी तो और ही इंटरेस्टिंग था, मतलब अब देखा अचानक जो सप्लाई आ रही है तो मैंने वो बोला सिस्टर को, पेशेंट को बुलाया ना दिखाने के लिए, फॉलिक एसिड ही नहीं है, वो तो सिंपल आयरन है. तो अब पेशेंट को आयरन नहीं मिल रहा, फॉलिक एसिड मिल ही नहीं रहा. एनीथिंग एंड एवरीथिंग हैपन. सो अब ये बोला कि सब लोग एक स्ट्रिप सबके टेबल पे रखेंगे रोज सुबह जो वो दे रहे हैं वहाँ से, क्योंकि कभी B12 की टैबलेट 500 की आ जाती है, कभी वो 1500 की आ जाती है. तो पेशेंट को आप यहाँ से समझा के भेजते हैं 1 टैबलेट रोज की, वो वहाँ से देते हैं और बोलते हैं 3 रोज की. अब आप सोचो पेशेंट क्या करता होगा, वो अपने हिसाब से ले लेता होगा. सो दीज स्मॉल थिंग्स आर सो इम्पॉर्टेंट, है ना. बहुत छोटी चीज़ें हैं पर बहुत दमदार चीज़ें हैं. सो डाइट, ड्रग्स, काउंसलिंग, आई थिंक ऑल दिस वी हैव सेट. ये सारी चीज़ों पे हमें करना है, एंड वी हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. थोड़ा डिफरेंट सोचना ही पड़ेगा कि हमारे आपका क्लिनिक एनीमिया फ्री कैसे होगा, वो आप ही समझ पाएंगे, क्योंकि आप ही के कुछ लोकल प्रॉब्लम्स होंगे, आपके क्लाइंटेल अलग है, राइट. एंड प्लीज पुट अ फ्लैग देयर दैट माय क्लिनिक इज एनीमिया फ्री. मतलब होना चाहिए ना, क्यों नहीं होना चाहिए. मतलब अगर हम आज सोचें एनीमिया फ्री होगा तो 6 हफ्ते 8 हफ्ते में तो हम एनीमिया फ्री होना ही चाहिए ना. तो कोई बहुत लंबा चौड़ा टारगेट भी नहीं है. So I think that's okay. हाँ ध्वज करता रहेगा एनीमिया फ्री. नो सीरियसली, एटलीस्ट जो आता है वो भी तो फिर उसको देखेगा ना कि ऐसे है, तो जो पेशेंट आएगा तो उसको भी फ्री करेंगे. सो दैट इज, आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी ऑल डू नॉट हैव एनीमिया और समथिंग. फ्री से ऐसे तो ना पेशेंट कहे कि हम सब कुछ फ्री दो. इससे मेरे को लगा, पर एनीवे आई मीन व्हाटएवर यू वांट टू पुट, बट सम thing should be there. It should reflect with pride. Absolutely. Very nice tagline. Excellent. So ये जो gaps मैंने आपको बताए थे, 6 टाइप के gaps हैं जिनको हमने we have worked on it. So healthcare provider को sensitize, motivate, empower to diagnose and treat anemia. तो सारे almost 6,000 आशा वर्कर्स को हम कॉन्टैक्ट कर चुके हैं. So it is not that me who is contacting. हमने तो जो अप्रोच अप्लाई किया
वो अप्रोच ये था कि हमने तो डिस्ट्रिक्ट वाइज लोग पकड़े और जो लोग हैं उनको सेंसिटाइज किया, फिर आगे सारी कैस्केडिंग उन्होंने की. I did not have anything to do in that. So the directorate was on board और वो अभी भी कैस्केडिंग चल रही है. But it is such a bliss to see. अगर किसी भी आशा वगैरह से वैसे बात करो 12 ही बताते हैं आजकल. which is and which used to be 7, 8, कोई 5, क्योंकि वो इसलिए बोलते थे कि उनके जो पेमेंट थी वो सिवियर एनीमिया से लिंक थी. जो उनके जो पेशेंट जब उनको इंसेंटिव था तो इसलिए उनको 5, 7 उससे आगे कोई बढ़ता ही नहीं था. बट नाउ दे ऑल आर अवेयर ऑफ इट. अभी जो हमारा गैप रह गया है वो एमओज के लेवल पे रह गया है, उनको हम नहीं अभी अप्रोच कर पाए. बट एनीवे एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज़ टेकन देयर ओन ओनर्स नाउ एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दे आर ट्राइंग टू मेक इट फ्री. फिर ये ओनरशिप हो गया. ये सबको अपने अपने क्लिनिक की ओनरशिप करनी चाहिए. मेरे को लगता है कि आप जितने लोग बैठे हैं अगर आप ये कर लेंगे ना कुछ ऐसा, तो ये सिस्टम जो है ये इट विल वर्क. हाँ, है ना मैम, ये लगता है कि वर्क करेगा. सो डिसेमिनेशन अप्रोच तो हमने बोला कि टॉप बॉटम की जगह बॉटम अप करिए. उन्हीं को बोलो, जैसे जो आपके वर्कर्स हैं उन्हीं की वो ज़्यादा कनेक्ट करेंगे जो पेशेंट्स के साथ. हाँ, कैप्टिव ऑडियंस की बात है ना. उनको जो ये सिस्टम चेंज करो, ऊपर से टॉप बॉटम नहीं हो सकता. अगर मैं कहूँ एनीमिया मुक्त हो जाएगा, नहीं होगा. दे हैव टू बी अदर पीपल who should know that it has to be anemia मुक्त. So ये हमने collaboratives शुरू किए थे. This was in 22. So believe me, every hospital is working. और अभी हमने जो नई चीज़ शुरू की है, अपर्णा और मैंने एक नया जो हमारे यहाँ पे हमने QI किया ना मैम, जो हमारी लर्निंग्स थी उस QI से, अब हमने सारी डिस्ट्रिक्ट्स में से एक एक नोडल लिया और वहाँ पे एक एक हॉस्पिटल में हम कोलैबोरेटिव कर रहे हैं. हम हर महीने मिलते हैं. जो स्टेप्स से हम आगे बढ़े तो वो स्टेप से हम उनके जो बुक्ड पेशेंट है उनमें एनीमिया कम कराने की कोशिश कर रहे हैं. सो वी हैव 10 हॉस्पिटल्स ऑन बोर्ड. सो फॉर द पास्ट 2 months वी आर वर्किंग ऑन दैट. एक एक स्टेप इकट्ठे लेते हैं सारे कि हमने ये स्टेटमेंट बनाया, हमारा बेसलाइन ये है. उसके बाद उन्होंने कहा कि मतलब अब हम क्या करें, कैसे करें. फिर हमने कहा था कि आप 28 हफ्ते पे शुरू करो. सारे को ढूंढने लगोगे तो फिर 28 हफ्ते पे हीमोग्लोबिन ही नहीं हो रहा था. फिर अब सारे वर्क कर रहे हैं अपनी अपनी जगह पे, 28 हफ्ते पे कैसे हीमोग्लोबिन होगा. सो दे आर वर्किंग ऑन दैट. फिर वो सारे बैरियर्स पास करके फिर उसके बाद पेरेंट्रल पे आएंगे. सो अब 10 हॉस्पिटल इकट्ठे जा रहे हैं. फिर वो आगे हैंड होल्ड करेंगे अपनी डिस्ट्रिक्ट्स का, जो उनके पास PHCs और छोटे वाले हॉस्पिटल्स हैं. सो एम इज़ टू डू कैपेसिटी बिल्डिंग. We can't do it, everything we can't do on our own self. What is important is it has to be disseminated. So अभी नारची गंगाराम ने टेक ओवर की है. सो वी आर ट्राइंग टू जैसे वो नहीं होता आपका रिले रेस, तो उस रिले रेस का डंडा जो है हैंड ओवर कर रहे हैं उनको भगा के साथ में, कि मतलब आप इनके साथ टैग हो जाइए, आप इनके साथ टैग हो जाइए. तो आई थिंक अगर नारची इस बात पे फोकस रहेगा, सो कम्युनिटी वर्क पे, तो आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप of doing things. So that is what. नहीं करेंगे वो, ऐसा नहीं है. हाँ, नहीं वो बात मेरी हो गई थी उनसे, ऐसे नहीं होता. वो तो ऐसे करना ही पड़ेगा. नहीं वो अभी ऐसा सोच रहे हैं कि मैं कर रही हूँ पर नहीं करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है ना. So ये आपका था जो मैं दिल्ली गाने को, मैम आप भी लगे हुए हो ना. हाँ, तो बस ठीक है. फिर अगर 2 तरफ से लगे हुए हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा, ऐसा कुछ नहीं है. बिल्कुल. सो दिस इज़ व्हाट वी हैड बीन डूइंग. और ये सब हो गया. सो जो सेकंड, ये तो सेंसिटाइजेशन की बात हुई. सेकंड गैप था एड्रेसिंग एनीमिया इन बुक मदर्स एट एडमिशन इन लेबर वार्ड्स. तो आपका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए कि आपकी कोई भी मदर जो आपके केयर में रही है और वो बर्थ कर रही है, उसका हीमोग्लोबिन 12 से कम नहीं होना चाहिए. बिल्कुल नहीं. पहली बात तो ये वो 10 होनी भी नहीं चाहिए वहाँ पे. इतना क्या लॉस हो गया. नहीं, पोस्ट डिलीवरी में कोई 2 ग्राम % मतलब काफ़ी फॉल है, वो ऐसा तो नहीं होना चाहिए. हाँ. तो इसका मतलब पहले कम रहा होगा. हाँ, तो मेरा कहने का मतलब अगर आप ये एम कर लेंगे और आप अपने अपने क्लिनिक पे ये ऑडिट कर सकते हैं कि जो आपके पेशेंट डिलीवर होते हैं उनका हीमोग्लोबिन लिखा जाए, उनमें से कितने, यही हम बाकी अस्पतालों के साथ कर रहे हैं एनीमिया कोलैबोरेटिव में. तो दैट कैन बी डन इन प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो. आपकी तो लिस्टेड नंबर ऑफ डिलीवरीज होती हैं, उनमें से आप देखिए कितने हैं जो एनीमिक हैं. आप समझ गए, अगर से 100 डिलीवर हुए तो 40 एनीमिक थे, 50 एनीमिक थे, और
माइल्ड थे, मॉडरेट थे, वो एक छोटा सा एनालिसिस आपने करना है, इज इट राइट, है ना? और फिर उस पर वर्क करो कि वो एनीमिक क्यों रह गए। तो जब आप ऐसा वर्क करोगे तो ऑटोमेटिकली बाकी के सारे ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आप उस नंबर्स को देख रहे हो। नंबर्स को देखना जरूरी है। नंबर जब आंख के आगे नहीं आते हैं ना, और हम उसके बारे में बात नहीं करते हैं, तो फिर इसलिए रह जाता है, उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा, राइट? सो दैट इज इट। एंड ऑफ कोर्स पोस्टमार्टम जो पेशेंट है उसका देयर कैन बी अ फॉल ऑफ 1 ग्राम% तक आप सोच सकते हो, पर उससे ज़्यादा फॉल तो नहीं करना चाहिए अनटिल पीपीएच हो गया। पर जिनको हो गया उनको आप FCM दे के भेज सकते हो, डेफिनेटली भेज सकते हो। सो ये पॉइंट ऑफ केयर जो हम कर रहे हैं, एंड वी आर डूइंग इट। एंड हमारे हॉस्पिटल में इन माई यूनिट इट इज़ कम डाउन टू अबाउट 10% के करीब हो गया फ्रॉम 48%, जो बुक्ड मदर्स हैं, जो बुक्ड, एंड दे ऑल माइल्ड। सो दैट इज़ हैपनिंग नाउ। माई नेक्स्ट चैलेंज विच इज़ देयर इज़ कि उसका बाकी यूनिट्स में फ़र्क पड़ा है, बट नाउ आई हैव मेड अनदर ग्रुप नाउ जिसपे सारे यूनिट्स के नोडल्स लिए हैं, और अब हम ये प्रोजेक्ट करते हैं उसमें उनका भी और अपना भी। सो नाउ एवरीवन इज़ एग्रीड दैट दे विल ऑल्सो फॉलो द सेम स्टेप्स। तो अब पूरे अस्पताल में अब वो होगा, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वाई शुड दे बी एनेमिक। सो दैट इज़ इट। और ये सब उसी का पार्ट था। आई एम नॉट गोइंग टू टेक यू टू द डिटेल्स। This is what it is. This public, this is the QI anemia collaborative this year. ये वाला हमारा collaborative चल रहा है। 10 हॉस्पिटल्स से ज़्यादा हैं इसमें, और हर किसी का अपना अपना नोडल है। सब ने अपना अपना निकाल लिया कि उनका बेसलाइन एनीमिया कितना है उनके जो मदर्स बर्थ करती है उनके लेबर रूम में, और जो उनकी बुक्ड है। हम अनबुक की तो बात ही नहीं कर रहे। ऐसी एनर्जी काहे को वेस्ट करें? जहाँ पे अनबुक्ड होता रहेगा, हम ये नहीं कह रहे कि उसको हम एड्रेस नहीं कर रहे, आशास को कर रहे हैं। पर हमारी फैसिलिटी में जब हम कहते हैं कि 90% प्लस बर्थ्स फैसिलिटी बेस्ड हैं, तो अगर हर फैसिलिटी ये डिसाइड करेगी कि मेरी फैसिलिटी में जो मेरे बुक पेशेंट है वो एनीमिक नहीं रहेंगे, तो फिर कैसे रहेंगे एनीमिक? आई थिंक वी शुड स्टार्ट स्मॉल एंड मूव ऑन, एंड थिंग्स विल डेफिनेटली प्ले अ लॉट ऑफ रोल, राइट? सो ये सब हॉस्पिटल्स हैं। अभी कुछ सब लोग अलग अलग स्टेजेस पे हैं, मतलब कुछ फेंस सिटर्स हैं, सोच रहे हैं आए नहीं आए, है ना, कभी कभी मीटिंग में आते हैं, पर हम तो उनको पूरी तरह से ट्रेन कर रहे हैं। जैसे हम स्टेप 1 करते हैं, फिर सबको एक टीचिंग राउंड होता है, फिर अगली बार सारे अपना डेटा प्रेजेंट करते हैं, फिर हमने गूगल शीट्स बना दिए हैं जिसमें वो डालते हैं। सो वी आर ट्राइंग टू गेट देम ऑन बोर्ड एंड दे सीम टू बी एक्साइटेड, क्योंकि वंस दे गेट एक्साइटेड तो उनको लगेगा ना कि ये कुछ हो रहा है, तो फिर वो बड़ी हैप्पीनेस आती है। सो आई थिंक वी आर वर्किंग ऑन दिस एंड वी आर ट्राइंग टू मूव ICMR प्रोजेक्ट ऑन दिस। अगर वो प्रोजेक्ट मोड में हो जाएगा तो उससे हमें ये बेनिफिट हो जाएगा, वील हैव सम पीपल हु विल कीप द डेटा। अभी तो हम बहुत बिजी हो जाते हैं ना, तो हमें वेडनेसडे मीटिंग लेते हैं हम लोग 5 to 5:30, पर फिर उसका डेटा कहीं पार्क होना चाहिए, फिर उसको लुकअप करना चाहिए। सो इफ़ वी गेट अ प्रोजेक्ट, लेट्स सी, एम्स की तरफ से भी है मोबिलाइज्ड फाइल। फिर ये CBC काउंट, दिस इज़ वी आर ट्राइंग टू गेट इट ऑन द AMB गाइडलाइंस। बहुत उन्होंने उसमें मना किया कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हमने बोला कि ये तो होना ही चाहिए, जरूर होना चाहिए। और CBC, आई थिंक प्रैक्टिस में सबने देखा होगा कि CBC को जैसे हम पहले देखते थे, मतलब उसको हम काफ़ी जस्टिस नहीं करते थे ना, वो आ जाता था देख लेते हैं। अब तो सारे लोग देखने लगे हैं, है ना, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। डू यू ऑल एग्री विद मी? इट इज सो मच ऑफ इन्फॉर्मेशन। हाँ हाँ। So it is, not only ordering the test, it is to see what it is telling us. I think that, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये टिपिकल है जो उसका है मेंजर। आप देखिए RBC काउंट इज़ हायर, 3.5 to 4.5 होता है, और ये 5.79 है। Why should the patient be 9.3? है ना, अगर RBC काउंट इतना ज़्यादा है तो वो तो कम नहीं होना चाहिए। जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन इज़ 10.9 है ना, 10.3 नहीं, वो WBC काउंट है 10 हाँ। ये इसमें दो मैसेजेस हैं। इसमें 2 मैसेजेस ये हैं कि 10.3 भी नॉर्मल नहीं है। 10.3 का तो बाकी कोई चीज़ देखता ही नहीं ना कोई, मतलब वो तो सोचते हैं ओके माइल्ड एनीमिया, है ना। और फिर आप देखिए नीचे आइए MCV 60 ग्लेयरिंग, और MCH 17। हाँ, बस उसी में खुश होके और चलो आगे। सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना, एंड वी नीड टू काइंड ऑफ फोकस ऑन दैट। एंड RDW जिसका रेंज से ज़्यादा है, इसका मतलब मल्टीपल साइजेस के सेल्स हैं।
इसका मतलब गड़बड़ है, इसका ना न्यूट्रिशनल में कोई छोटा है कोई बड़ा है, नहीं तो सारे यूनिफॉर्म होने चाहिए ना, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक बराबर, नहीं, सो वो नहीं है, राइट, ओके. So the Menzer index here was 10. So everyone started calculating, and then we have found so many thal carriers. Ma'am, a number of them. Because after COVID, we've had a change in our patient profile. From Maulana Azad, lots of Muslim patients have come to us. तो पर इसने हमसे जो थैल इतना ज़्यादा हमने उनमें फाइंड आउट करना शुरू किया, because they have those marriages within the family. So मतलब बहुत ज़्यादा. So that is प्राइवेट प्रैक्टिस में तो सब कराते ही कराते. हाँ नहीं, but we have to kind of improve it wherever we have a gap, right? So vitamin B12 deficiency, I think we've had ample discussion on that, so I will not go. And this works because I talked to the pediatrician. We were doing a project. वो कहते बच्चों में भी वो इसको देख के फिर B12 कराते हैं. पता नहीं आज तक हमें क्यों नहीं देखा ये वाली बात, मतलब अजब ही बात है ना, कि वो कहते हैं, जैसे हम स्टडी में कह रहे थे कि कैसे सब किसका टेस्ट कराएंगे, कहते हैं हम पिगमेंटेशन देखते हैं. छोटी सी बात है, बट इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, है ना. सो आई थिंक, एंड हीमोग्लोबिन को बराबर करती भी है, इट वर्क्स. एंड रिमेंबर, ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, जो 200 और 300 के बीच में बॉर्डर लाइन वैल्यूज़ है, इसको भी सप्लीमेंट करना पड़ेगा अगर आपका पेशेंट एनेमिक है, क्योंकि जब आप पेरेंट्रल आयरन देंगे एरिथ्रोपोइसिस बढ़ेगा, तो विटामिन B12 यूटिलाइजेशन बढ़ेगी, और अगर डाइट में ऑलरेडी बॉर्डर लाइन है तो मान के चलो वो डेफिशिएंट हो जाएगा, है ना. सो ये बात भी थोड़ी क्लियर होनी चाहिए कि हमें उनको सप्लीमेंट करना चाहिए. तो जब पेरेंट्रल देते हैं तो एक B12 साथ में लगा देना चाहिए, है ना, 1000 माइक्रोग्राम लगा देना चाहिए. So that is a good practice, right? That is all what you need to do and act on this. So I think B12 का हमने बात कर ली, और पेरेंट्रल आयरन का स्पॉटलाइट ये मैंने आपको बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इट इज़ गोइंग टू कम इन अ बिग वे. नेक्स्ट स्टेप्स, अब जब हम सारे लोग बैठे हैं तो अब ये सोचने की बात हो जाती है कि हम क्या, अब इतना तो हम कर रहे हैं, एक तो ये स्टेप है कि हम इसी को मॉनिटर करें, इसको और आगे बढ़ाएं, पर अब हमें अपना एरिया थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए. सो व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप्स? सो आई थिंक जो everyone should be able to give some ideas. I have told you the gaps. वेट नहीं करेंगे कि कोई हमारे लिए काम करेगा. तो हम फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे जो फार्मा कंपनी वाले हैं, मैं तो ऐसे बड़ा ओपन उसमें कमेंट दे रही हूँ, मेरा मतलब हमें ही फाइंड आउट करना पड़ेगा मेथड, कि ये नहीं कि हम गवर्नमेंट को नहीं कह रहे हैं, वो तो चल रहा है पैरेलल, पर इन द मीन वाइल हम कुछ कर सकते हैं जिससे कि वो नहीं, और योगदान निकल आएगा, ऐसा नहीं है. मतलब हम वेट करते हैं कि बाकी लोग कब ठीक होएंगे, मतलब जो बेसिक वाली प्रॉब्लम है ना, कि वो इसी से होता है कि गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, मतलब वो जो हमारी मॉर्टेलिटी मीटिंग होती है ना, उसमें सब बैठ जाते हैं, है ना, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, और मेरे को इतनी कोफ्त आती है उस मीटिंग में कि होना चाहिए ओके, पर क्या करेंगे कि वो ना हो दोबारा. द फोकस इज नॉट ऑन उसने गलती की, हो गई जो गलती, कोई जान के तो अस्पताल में सुबह नहीं आता ना ये करने के लिए कि आज मैं यही गलत करूँगा, तो वो गलत किया वो इसलिए कि सिस्टम में गड़बड़ है. आई थिंक दैट इज द विजन विच शुड गो. इट इज़ नॉट दैट एवरीवन डजंट वांट टू डू समथिंग और एवरीवन वांट्स टू डू समथिंग गलत. सो आई थिंक दिस इज अ फूड फॉर थॉट. मैम आपके लिए खास और बाकी सबके लिए और भी खास, तो ये हमें करना है टू मूव ऑन फर्दर. सो आई थिंक आई कैन लीव दिस की मैसेजेस. एवरीवन इज क्लियर अबाउट these key messages, that it is associated with the diverse outcomes. It can be combated. We need to ensure that all girls and women outside pregnancy are more than 12 gram. All mothers who birth with a hemoglobin of 11, preferably 12. मैंने थोड़ा moderate किया इसको. Counseling of mother, her spouse and family member holds the key. CBC and peripheral smear are two very insightful investigations and must be used liberally. And parenteral iron must be considered in late pregnancy in those unable to tolerate oral iron. Vitamin B12 is prevalent, we should give it. I've talked about all the symptoms. 1 or 2 injections of 1000 microgram may be sufficient to tide over the pregnancy period. So I think that is what is it.
So basically, focus is there, the path is clear, we just have to start with the action. So thank you so much.